So students, let's continue with the chapter polynomials, exercise 2.4. Yesterday we were doing question number 5, right? And second question we started, how to factorize a cubic polynomial. How many of you have done that question? हमने थोड़ा सा किया था, बाकी मैंने आपको समझाया था how to do. Raise your hand, how many of you have done? No one? किसी से नहीं हुआ सम? हाँ जी अपरन, दिव्या, धीरेन. Ma'am, answer is x plus 1. Yes, ma'am. X plus 1. Ma'am, Yes, ma'am. 3 ब्रैकेट्स आई हैं आपके पास? yes, ma'am. दूसरी ब्रैकेट में होगा x square minus 3x plus 2. x square minus 3x plus 2 को आगे आपने फैक्टराइज करना है by splitting the middle term. Then only you will get the 3 brackets. All right, everyone lower your hand and look on the board. ठीक है? So yesterday we were doing this question. Here we can see nothing is, we can take common लेके ये factorize नहीं हो सकता. So what is the method? We have to use hit and trial method. Hit and trial method में क्या करते हैं? We substitute any value which is the factor of this constant. जैसे 1 put किया था 0 नहीं आया, ठीक है? After that we substituted -1. Put x is equal to -1. -1 put करके हमारे पास आ गया था 0. जिन्होंने कल नहीं समझा था बेटा, for them I am doing it again. Or if anyone was not present in the class yesterday. -1 cube -1 -3 into 1 minus plus 9 -5. -1 -3 plus 9 -5. All these 3 integers are negative, तो plus होंगे 5 6 7 8 plus 1 9. -9 plus 9 is 0. जब हमने x को -1 पुट किया तो हमारे पास 0 आ गया, तो हम लिखेंगे therefore x. -1 को उधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो क्या बनेगा +1. therefore x plus 1 is a factor of x, right? Next. Now this is a cubic polynomial. How many factors it has? It has 3 factors. कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं. यहाँ पर हमें कितने फैक्टर्स मिले? 1. अब हमें इसके 2 फैक्टर्स और चाहिए. यस धीरेन, पूछना कुछ? नो मैम, मैंने आंसर के लिए रेस किया था. आंसर ठीक है बेटा, आप अपना आंसर मैच करेंगे मेरे साथ, ठीक है? आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, जो बेटा आपका पास एक फैक्टर आ जाता है वैल्यू पुट करके, उसके साथ इस पॉलिनोमियल को क्या करना है? डिवाइड. लॉन्ग डिवीजन यू हैव टू डू. So I'm going to rub this because I need full board. आपने इतना करना है, इसके बाद नीचे, ठीक है? इन कंटिन्यूशन x cube minus 3x square minus 9x minus 5. And which is the factor? x plus 1. x plus 1 is the factor. आप डिवाइड करेंगे बेटा, देखो बोर्ड पे सारे, यहाँ x क्यूब है, यहाँ x. So how many x more we want? 2x. So x into x square is x cube. 1 into x square. 1 into x square is x square plus x square. 1x square होता है, 1 चाहे लिखो चाहे नहीं, प्लस का साइन यहाँ, नेगेटिव नहीं है तो क्या है? पॉजिटिव, राइट? Then what we do? Change the sign, minus 9. x cube cancel. Minus 3x square
minus 3x square and minus x square. Minus 3x square and minus x square. दोनों नेगेटिव है. यहाँ क्या है 1. x square हटा. Minus 3 minus 1 is what? Minus 4. Right? So what it will be? It will be minus 4x square. फिर ऊपर वाली टर्म नीचे ले आओ. Minus 9x minus 5. Next, we have x. We want minus 4x square. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? एक हमें चाहिए माइनस, एक हमें चाहिए 4. 2x है यहाँ, एक x, तो एक हमें चाहिए x. So x will be multiplied with minus 4x. So as to make it minus 4x square. X into minus 4x is minus 4x square. Plus 1. 1 into minus 4x is minus 4x. Any step if not clear to anyone, beta, you can raise your hand. Then we will change the sign. ये minus है तो ये plus, minus है तो plus. Cancel. Minus 9x plus 4x. क्या बनेगा? 9 minus 4 5, but negative sign as 9 is bigger. Minus 5x. ये बहुत ध्यान से आपने करनी है. अगर आपकी डिवीजन गलत है तो आपका क्वोशंट गलत आएगा, फिर आगे फैक्टराइजेशन भी गलत, कोई नंबर नहीं मिलेंगे फिर. माइनस 5x माइनस, अब हमारे पास x है, हमें माइनस 5x चाहिए, सो वी विल मल्टीप्लाई x विद माइनस 5. x into minus 5 is minus 5x. 1 into minus 5 is minus 5. प्लस, आप देखोगे क्योंकि हमने पहले लिखा था ना कि x plus 1 इसका फैक्टर है, फिर हमने डिवाइड किया. अगर हम किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा. In case you are not getting the remainder 0, then it means you are doing division wrong. Am I clear? Right? If a factor of any polynomial is divided by that polynomial, then we will get remainder always 0. So, इतना करने के बाद, please note down till there. Then I have to rub it. Hurry up. Done. चलो इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, करती हूँ अभी. डिवीजन करने के बाद आप लिखोगे px. px मीन्स ये, इसके क्या फैक्टर्स हैं? एक x plus 1 and quotient is also the factor. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वही px आएगा. So we will write px is equal to x plus 1 but we know this is a cubic polynomial, so it will have 3 factors. 3 factors means 3 bracket. एक ब्रैकेट यहाँ से आ गई, दूसरी बेटा इसको स्प्लिट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. Now x square minus 4x minus 5. What is the sum? Minus 4. And what is the product? x square के आगे क्या है? 1.
यहाँ कांस्टेंट क्या है, -5. So the product is -5. So what can be the two numbers whose sum is -4 and product is -5? -5 and 1. -5 plus 1. सम करेंगे दोनों का तो -4, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो -5. So -5 and 1 are the two numbers. So it will be x square minus 5x plus 1x minus 5. I hope every one of you are getting it. ठीक है, सबसे पहले वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद बेटा हमारे पास एक फैक्टर आ गया, उस फैक्टर को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है. जब पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा. उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके हमें अलग से उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने हैं. यहाँ दोनों फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन, क्या बचेगा, x minus 5. Then plus 1 common, what we are left with, x minus 5. So x minus 5 and x plus 1. Therefore dx is equal to, एक x plus 1 पहले था, एक x minus 5 and one more x plus 1. इनको कंबाइन नहीं करना है. Is it clear? So this is the way how we have to solve a cubic polynomial, how we have to factorize. And such question comes in 4 marks. ठीक है, 4 mark में आता है बेटे ये question. And very important. Any doubt to anyone you can ask and note down. Then I'll take the next sum. Yes, Aparna. मैम यहाँ पर x+1 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो हम उसका स्क्वायर नहीं लिख सकते? नहीं लिखना बेटा, अलग अलग करके ही लिखना. ओके मैम. Anyone else? Noted? Shall I rub it? If anyone is still noting it down, please raise your hand. Okay, now come to the third part. Let px, हमने अपनी तरफ से इसको लिखा ना, तो लेट कर लेते हैं. x cube plus 13x square plus 32x plus 20. Now again beta, you can see in the question that जैसे मर्जी आप इसको कॉमन लोगे, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लोगे तो x plus 13 बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो 8x plus 5 बचेगा. ठीक है, no same bracket is coming when we are taking common from any two terms. अगर इनमें से कॉमन लेते हो इनको करके, तब भी कुछ सेम नहीं आता. मीन्स 2 टर्म्स में हमें एक कॉमन ब्रैकेट चाहिए. जैसे इसमें से कॉमन लेके इसमें से तो कॉमन लेके सेम ब्रैकेट नहीं आती, तो आगे वो फैक्टराइज नहीं होगा. ठीक है, तो अगेन वी हैव टू सॉल्व इट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. यू कैन सी ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव. तो इसमें अगर हम +1 फिल करेंगे, we will not get 0, of course not. ठीक है, so we will try with -1. put x is equal to -1. और अब ये जो आप ट्राई करते हैं ना, तो आप ये जरूरी नहीं है कि आप फेयर में ट्राई करें, पहले रफ में ट्राई करें. जो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है उसको फेयर में शो करें, और अगर फेयर में भी ट्राई करना चाहते हो तो देन ऑल्सो इट इज ओके. ठीक है, so p of -1 क्योंकि एक बार हम ऑरली कर लेते हैं ना,
तो जरूरी नहीं, जो वैल्यू सेटिस्फाई होती है उसको शो करना है। 13 into -1 square -1 cube is -1, -1 square is 1, plus into -32 plus 20. अब देखो 20 is positive and 13 is positive. 33 -1 and -32. Again, just 1 minute. -33 is 0. 0 आ गया. Therefore, x -1 उधर जाके +1, x plus 1 is a factor of px. Clear? एक फैक्टर आ गया. अब फर्दर इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. So now let's start the division. Hurry up, everyone, please note down this much, then I will wrap it. Now, x cube divided by x plus 1. So now here we are having x. Here we are having x cube. तो कितने चाहिए x2? X into x square is x cube plus 1 into x square is 1x square, or you can simply write down x square also, minus किया x cube minus x cube. ठीक है. Then 13x square minus 1x square is 12x square plus 32x plus 20, right? Now see, here we are having x, here we are having 12x square. So plus 12x. With what we will multiply x? With the 12x. X into 12x is 12x square. 1 into 12x plus 12x minus. ये कैंसिल हो गया बेटे. Now what we are left? 32 minus 12x. It is 20x plus 20. Now x 20x. इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 20. वाई प्लस लिखते हैं यहाँ क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए. x multiplied by 20 is 20x and 1 multiplied by 20 is minus 0 आ गया. So again you can see उस पॉलिनोमियल के फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा. Therefore px can be written as x plus 1 and x square plus 12x plus 20. Sometimes the student leave the sum here. फिर आपका 1 number कटता है. Because here further you need to split. You have to factorize this quadratic polynomial. Note down, then I will wrap this part.
Now see further. क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, है ना? सम क्या है बेटे? 12 एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट? इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1. 1 into 20 is 20. Product is 20. So what can be the two numbers? इसका सम हो 12 और प्रोडक्ट हो 20. 10 and 2, 10 plus 2, 12, and 10 2s are 20. So x square plus 10x plus 2x plus 20. x कॉमन बचा क्या? x plus 10 plus यहाँ से 2 कॉमन और we are left with x plus 10. So x plus 10, x plus 2. Therefore, dx is, एक factor है x plus 1, second is x plus 10, third is x plus 2. Fine. Note down. Any doubt to anyone in the third part? Now let's see the fourth part. बेटा, this is the fourth part. सबसे पहले हमने देखना है कि क्या कॉमन लेके सॉल्व होता है. मान लो सपोज आपने नहीं ध्यान किया कि कॉमन लेके सॉल्व हो रहा है, ठीक है, आपने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लिया, तब भी कोई बात नहीं. You will get the same answer in both the ways. It is not that if this sum can be solved by taking something common factor, then you cannot do it with that method. वो मेथड थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, मुश्किल इन द सेंस उसमें काफी कुछ करना पड़ता है, पहले पुट करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर फैक्टर्स निकालने हैं, स्प्लिट करना है. कॉमन लेने से सीधा 2-3 स्टेप्स में ही क्वेश्चन हो जाता है. तो इसलिए हमेशा सम को देखो कि क्या कॉमन लेके हो सकता है कि नहीं. जैसे यहाँ देखेंगे, अगर 2y³ प्लस y², अगर हम यहाँ y स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? एक 2 और एक y प्लस 1. यहाँ दोनों नेगेटिव है, -1 आई विल टेक कॉमन. व्हाट आई एम लेफ्ट विद? 2y माइनस कॉमन है तो +1. दिस इज वन टर्म एंड दिस इज द अनदर टर्म. 2y plus 1 is common. What we are left with? Y square minus 1. 1 को लिख सकते हैं 1 square. It is further y minus 1 y plus 1. सिंपल 3 स्टेप्स में हमारे पास हमारा आंसर आ गया. राइट? So we have done till now the remainder theorem, factor theorem, factorization of cubic and quadratic polynomial, right? Long division also we have discussed. Anyone wants to ask anything till now? Any doubt to anyone? हाँ जी अपरन. मैम हमें ये कैसे पता लगेगा कि कोई पर्टिकुलर सम में हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है या सिंपल फैक्टराइजेशन करनी है? सबको देखकर अपरन. मैम अगर मतलब उसमें कॉमन कोई चीज बाहर आ सकती है दोनों सारी टर्म्स में से, तो हम सिंपल फैक्टराइजेशन देखो ना, इसमें आपने एक मिनट, इसमें आपने देखा दो टर्म में से कॉमन लेना है, चाहे पहले 2 टर्म में से ले लो
चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो आप, शफल करके कॉमन लेकर देखो, वो आइडिया लग जाता है सम देखते ही। जैसे हमारा थर्ड पार्ट था जो, है ना, ये था। इसमें मैंने आपको वर्बली बता दिया था। इसमें देखो बेटा, अगर आप इनमें से कॉमन लेते हो एक्स स्क्वायर तो क्या बचता है, एक्स प्लस 13। यहाँ कॉमन लेते हो 8 तो 4x प्लस 8 नहीं 4। कुछ सेम आ रहा है, नहीं आ रहा ना? अगर आप इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दोगे तब भी यहाँ से x कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 32, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं, तो वो सम देख के पता चलेगा। देयर इज नो अदर वे आउट। ठीक है, अगर कॉमन लेना है आपको नहीं समझ आएगा, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करोगे तो उससे भी आपका सम करेक्ट ही होगा। Now further we have algebraic identities on page number 44 after exercise 2.4. Look here, many identities you have done, so we will again revise this and you will write this in your fair notebook. यहाँ x और y में गिवन है, मैं a और b लेके करवाऊंगी जैसे हम 8 में करते थे। ठीक है, तो वैसे हमें लर्न रहती हैं। a plus b whole square is, this is identity number 1, आप लिखोगे identity 1। वैसे कोई फिक्स नहीं है कि कौन, ये कोई पर्टिकुलर इसकी कैटेगरी नहीं है कि ये आइडेंटिटी फर्स्ट है, बुक वालों ने दे दिया है तो हम कहीं पर आगे यूज करते हैं बाय आइडेंटिटी 4, बट आप सिंपल लो नंबर 1 आइडेंटिटी, कोई नंबर पर्टिकुलर देने की जरूरत नहीं है इसको। a square plus b square, note down please everyone, or you can just understand and later on you can note down from your book. Second is beta a minus b whole square, all of you know it is a square plus b square minus 2ab. Yes, एक्सक्यूज मी मैम, मैम जैसे कई बार कुछ आंसर्स लिखे होते हैं उसमें कुछ आंसर तो सेम होते हैं लेकिन शफल करके लिखे होते हैं, तो वो ऐसे क्यों होते हैं? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, तो मैम वो शफल करके क्यों उन्होंने लिखे होते हैं कि जैसे कि ए जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो एक्स क्यूब माइनस 13x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7, वो क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी देन कांस्टेंट, देन आल्सो इट इज ओके, वन बोथ वेज इट इज करेक्ट। ओके मैम। टर्म्स वही आनी चाहिए और हर एक टर्म के आगे साइन वही होना चाहिए। अगर प्लस 4x स्क्वायर है तो प्लस 4x स्क्वायर ही होना चाहिए, शफल करते हैं अगर तब भी, राइट? ओके मैम। So third is a square minus b square. It is a minus b, a plus b. ठीक है? Then beta we have one more identity, x plus a, x plus b. This is what? This is product of a binomial with a binomial. तो इसके लिए क्या होता है x square plus, सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, सीधा लर्न करेंगे। a plus b into x plus ab. You can solve it and you can see you will get this only. ठीक है? Then you have these were the basic identities जो पहले भी की हुई हैं। Fifth, a plus b plus c whole square. अब यहाँ से शुरू होंगी new identities which you have not done before. Now it is a trinomial, उसका square आपने, so it is a square plus b square plus c square plus 2ab, 2 into ab plus 2 into bc plus 2 into ca. लर्न करनी पड़ेंगी, चाहे एक्स वाई जेड से लर्न कर लो, चाहे एबीसी से लर्न कर लो, योर विश।
A square plus B square plus C square plus 2 into AB plus 2 into BC, then plus 2 into CA. Fine. Next beta, A plus B whole cube. All identities are very important. A plus B whole cube, it is A cube plus B cube plus 3AB into A plus B, और इसको हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। ये कैसे हुआ? इस ब्रैकेट को हमने खोल दिया। तो जब हमारे पास आगे क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, समटाइम्स ये लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व होता है, कई बार ये, बट दोनों एक ही हैं। नोट डाउन। Next is A minus B whole cube. A cube minus B cube minus 3AB into A minus B. Look here on the board. प्लस वाले में हर जगह प्लस है, माइनस वाले में हर जगह माइनस, और A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3A स्क्वायर B, अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो लास्ट में माइनस माइनस से क्या बनेगा, प्लस। All these identities you have to learn. So A cube minus B cube minus 3A square B plus 3AB square. Last identity. अच्छा, ये दो और क्वेश्चंस भी हैं। A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC. It is equal to A plus B plus C into A square A plus B plus C, ये आगे इसके साथ कॉन्टिन्यूशन में है, ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ 2 नहीं है, और यहाँ माइनस है, माइनस AB माइनस BC माइनस C। So you will note down all the identities in your fair notebook. We'll continue tomorrow with this. Fine, beta. Take care. एक मिनट, कौन है ये? हाँ जी प्रणय। मैम फोर्थ आइडेंटिटी कौन सी थी? बुक में लिखी हुई है बेटा, बुक में देख लेना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली, राइट? टेक